जीते जीते पाकिस्तान, जीते 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीते पाकिस्तान। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Doha Absar. We welcome you to BUTV special transmission on 23rd March 2017. जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज आज के दिन जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी वो साइन की गई थी विच इज़ बेसिकली जो बुनियाद रखी गई थी पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स. वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डोंट नो इज़ दैट पाकिस्तान रेजोल्यूशन का जो नाम था वो इंडिया के उस ज़माने के मीडिया ने ही इसका नाम रखा था. हमें हिस्ट्री की किताबों में हमने इसके बारे में बहुत सुना है. आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम अपने ही स्टूडेंट्स से बात करेंगे एंड वी विल आस्क देम व्हाट पाकिस्तान हैज़ गिवन टू देम सो फार एंड हाउ मच वी कैन कंट्रीब्यूट टू दिस नेशन. बिकॉज हमें तो ये मुल्क बना बनाया मिला था लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रगल इन्वॉल्व थी हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं और उसकी कदर भी कम करते हैं. जॉइनिंग मी टुडे आर स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर मीडिया, Sadaf and Mahnur. We will be talking to them about their experiences in Bahria along with their experiences in Pakistan as well as a Pakistani. Assalamu alaikum. Welcome to the show and thank you for joining us. Thank you for coming. So first semester के students हो, you guys are the newbies right now. You know अभी हम तो बहुत आपको बड़े बड़े और डरावने लग रहे होंगे. But let's start in a very generic way. But we will make it interesting. लेकिन अभी हम बात करते हैं about Bahria so far. How do you like it? It has been good so far. Like I wasn't expecting because I was from Lahore and I didn't know कि बहरिया में इतनी ज़्यादा opportunities होंगी. I also write for BU Tribune. So and also the studio here. I didn't know about these facilities. But after coming to Bahria, I realized that it's a good place for media students. Especially it polishes you a lot. What about you? Bahria is a great place. मैंने बहुत सुना था इसके बारे में and it's very friendly and it provides you with a lot of opportunities. यहाँ पर TV, radio and everything आपको बहुत newspaper, Tribune और बहुत अच्छा है and it opens a lot of doors for you. So Sadaf mentioned she's been working with the newspaper. Have you been working with any? I've been working with the radio. I have a show on radio. It's called the Diva Girls. And so what's it about? It's about fashion, entertainment, and I interview people, different personalities, जो भी entertainment or fashion से related हो, and it's about that. So let's come to a bit about Pakistan because we are Pakistanis at the end of the day. हमारी identity यही है. हम मुल्क से बाहर भी जाते हैं तो हमें recognize किया जाता है and I feel it's a sense of achievement. We should be proud of it. तो Pakistan resolution कि तो obviously it's history, it's boring. I'm not going to talk about that. लेकिन हम अगर if any of your ancestors like दादा दादी नाना नानी कोई अगर partition का हिस्सा रहे, have they ever talked to you about their experiences कि कितनी struggle हमें बस किताबों से ही पता चलता है कि कितनी struggle हुई थी पाकिस्तान बनने में, but they have actually faced it. Yeah. Any of you would like to share experience or any story that you've heard? Like the जो ट्रेन थी जिसमें सब सिखों ने सबको मार दिया था. My whole family was going to travel in that train. मगर मेरी जो थी दादी वो पैदा हुई उसी दिन और जिसकी वजह से they couldn't go into that train. वरना उन सब का भी आज कोई होता ही नहीं मेरा. तो इसलिए मगर उसकी वजह से they had to stay back in India. They couldn't travel to Pakistan और उसकी वजह से उन सब की जानें बच गई. तो आई थिंक मगर उसके बाद भी जब वो आए थे तो उन्हें काफ़ी सब करना पड़ा था. उनके पास कोई घर वगैरह नहीं था. तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज आई रिमेंबर उस ज़माने में हम सुनते हैं कि ट्रेन्स भरी हुई होती थी डेड बॉडी से जो डेस्टिनेशन पे पहुंचती नहीं थी एंड इफ दे डिड दे वर जस्ट नोबडी वाज अलाइव. और उन्होंने एक महल में छुपे थे. वो छुपे थे सारे लोग क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास और कोई जगह नहीं थी. तो महल और उसी वजह से मेरी दादों का नाम शहजादी रखा गया था क्योंकि वो महल में पैदा हुई थी. दैट्स वेरी नाइस. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. डू यू हैव एनीथिंग मानूर? My father's side used to be in India and they migrated. They used to study. मेरे दादा सब स्कूल में होते थे and everything. लेकिन उसकी वजह से उनको छोड़ के आना पड़ा यहाँ पर and then they settled here. But they migrated and. जैसे like Sadaf has mentioned her incident है तो ये कितनी like एक हमारे लिए तो बस एक स्टोरी ही है. But to think about it पता नहीं ऐसी कितनी families होंगी who had to leave everything. Overnight and they had to just come across the border. Struggle किया उनके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा and हमें तो ये मुल्क बना बनाया मिल गया. We take it for granted to be very honest. हमें इतनी परवाह भी नहीं है इसकी and a very large portion of our society is even ashamed to call themselves Pakistanis. So what's your opinion about that?
नहीं, वी शुड बी प्राउड दैट वी आर पाकिस्तानी, वी हैव अ फ्री कंट्री, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास नहीं होता। आप बाहर जाओ, मेरे काफ़ी कज़न हैं जो बाहर रहते हैं, उन्हें इतने ज़्यादा मसले होते हैं क्योंकि दे आर नॉट अमेरिकन नेशनल्स और स्टफ, तो उनको ज़्यादा मसले फेस करने पड़ते हैं, रेसिज्म वगैरह सारा। हमें यहाँ बैठ के कुछ नहीं होता, अभी हम लोग कहते हैं हमारा मुल्क है, हम जो मर्जी करें, तो हमें वो है प्रिविलेज, मगर बाकी लोगों को नहीं है, तो हमें उसका होना चाहिए कि हमारे इतनी मुश्किल से हमें मिला है तो हम उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि सिर्फ वी टेक इट एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। एंड इवन इफ वी टॉक अबाउट ट्रैवलिंग आउटसाइड, हम बाहर भी जब जाते हैं वी आर रिकग्नाइज्ड एज पाकिस्तानी पाकिस्तानी, एंड हमें बहुत इज्जत मिलती है बिकॉज हमारा जो कल्चर है, खाना पीना, हमारे कपड़े, अप्रिशिएटेड अ लॉट। हैव यू गाइस ट्रैवल्ड? यस। तो यू मस्ट हैव सीन द डिफरेंस कि यहाँ पर हमें किस तरह ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है। I recently went to USA और वहाँ पर जिसको भी पता चलता था कि हम पाकिस्तान से आए हैं वो इतना खुश होते थे और इतना वेलकम करते थे। हमारे हमें यहाँ पर जो बताया जाता है इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू, बिकॉज वहाँ पर आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि बाहर के मुल्क से आपको कोई देखने आया है, और वो हमसे पूछते हैं कि हाउ इज़ पाकिस्तान, एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड मोस्ट ऑफ देम आर पॉजिटिव मोस्टली। बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ जो ऐसे होते हैं जो काफ़ी कहते हैं नहीं पाकिस्तान से हुई है वो, मगर मोस्टली लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं। और पाकिस्तान से रिलेटेड अटैच बहुत स्टीरियोटाइप्स भी हो गई हैं दिन ब दिन कि इट्स वेरी डेंजरस एंड यू नो यहाँ नहीं आया जा सकता, और जब उनको बताओ कि यू नो वी लिव देयर, वी आर स्टिल अलाइव, इट्स नॉट सच अ बिग डील, तब वो कहते हैं अच्छा ओके। हमें चारों सीजन्स हैं यहाँ पर। नॉर्दर्न पाकिस्तान इज सो ब्यूटीफुल एंड लोगों को एक्सप्लोर नहीं करना आता बस। I think that has a lot to do with us कि मतलब हम अपने मुल्क को उस तरह प्रोजेक्ट ही नहीं करते। Don't you agree? Yes, हम लोग सोशल मीडिया पे आप खोलें हर वक्त हमें पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव हम खुद बोल रहे होते हैं, मगर नहीं, बल्कि हमें पॉजिटिव बताना चाहिए सारी बातें, ताकि बाहर के लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में और भी है, टेररिज्म के अलावा भी चीज़ें हैं, मगर हम लोग हमेशा नेगेटिव बातें प्रमोट कर रहे होते हैं। Like you mentioned सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया सच अ पावरफुल टूल these days। हम सब फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इवन दो काम के लिए यूज़ नहीं करते, we're just using the you know the filters or whatever, but why don't we use this to actually get a better image of Pakistan, because बाहर के जो लोग हैं उनको तो वही पता चलता है जो मीडिया दिखाता है। जैसे सोशल मीडिया पे ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बेहतर किया है, ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने स्टोरीज बताई हैं पाकिस्तान की, आके एक पाकिस्तानी बंदे ने शुरू किया, तो दैट्स अ गुड वे टू यूज सोशल मीडिया कि आप अपनी पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें बता रहे हो बाहर को, ना कि आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ें। आई थिंक जो बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तान की एक इमेज है, मीडिया हैज़ अ लॉट टू डू विद दैट, व्हिच शोज कि मीडिया कितना पावरफुल हो सकता है। तो व्हाई डोंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट टू प्रोजेक्ट अ बैड इमेज, हमें अपने पार्ट पे तो आई थिंक इन अ वे वी शुड थ्रू आवर टीवी शोज और व्हाटएवर, एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल। So if we talk about radio, newspapers, अब तो बहुत कम हो गए हैं पाकिस्तान में यूज़ करना, but I think there was a time where newspapers and radios was a very big part of our culture. तो अब वो जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा है, don't you feel it needs to be revived again? It should be. And you work in radio as well, and you write. Yes, मेरे दादा वो हमेशा हमें हर संडे को बिठा के न्यूज़ पेपर पढ़ाते थे अभी तक, क्योंकि वो कहते हैं कि न्यूज़ पेपर पढ़ोगे, कब आप तो रीड नहीं करोगे यू वॉन्ट नो स्टफ, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग के लिए अब होता नहीं बस टीवी देख लिया ये और वो, जब तक आप रीड नहीं करोगे आपको लिखना भी नहीं आएगा, आपको पढ़ना समझना भी नहीं आएगा। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूज़पेपर में काफ़ी डिफरेंट, आप नहीं आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, आप और चीज़ें होती हैं वो पढ़ लो न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। And reading has a very close link with writing. Yes, very close. Because if you can't read, if you don't read, you won't be able to write. But this is a very good thing कि you know your dada makes you sit and read the newspaper. And न्यूज़पेपर तो चलो फिर अभी भी घरों में आते हैं, बट रेडियोज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। अब तो लाइक एंटीक पीसेज हो गए हैं घर में डेकोरेशन के लिए रखने के लिए। अब तो आई डोंट इवन सी एनी रेडियोज, बट एटलीस्ट भैया ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो वी कैन टॉक अबाउट द रेडियो एज वेल। सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट रेडियो, यू आर सेइंग यू डू अ शो, तो कैसा अभी तक, डू यू फील एनी डिफरेंस लाइक if you were on TV and you're doing radio, because you don't see anything on radio, you don't see the person. I'm sure it's a different area altogether. It is, but जैसे देखा जाए कि mostly radio लोग गानों के लिए सुनते हैं and everything, which is good but also bad, because they should also know what's going around and उनको सुनना चाहिए, and काफ़ी लोग productive बातें भी करते हैं और काफ़ी like it gives you a lot of information, तो लोगों को वापस आना चाहिए रेडियो की तरफ से। जिन लोगों के घर में televisions वगैरह नहीं होते, at least they should like you know रेडियो है and it's very informative, और सिर्फ गानों के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। I think ये जो हमारी वाली जो जनरेशन है, the youth, I think it is their part to play, कि अगर हम इसी बात पे awareness create करें कि रेडियो wasn't only supposed to be about music.
अब हो गया म्यूजिक के बारे पहले में। ड्रामास होते ही रेडियो पे थे, Exactly. टीवी तो था ही नहीं, तो तब तो रेडियो पे ही था ना, तो रेडियो इज इम्पोर्टेंट टू एज वेल। वो प्रॉपर लाइक प्लेस होते थे, जैसे अब वही चीज़ अब टीवी पे आती है, TV बट अब तो पे। टीवी से भी हटके अब यूट्यूब पे आ गई है। YouTube, बट इट यूज्ड टू बी अ वेरी बिग पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स कल्चर इवन बिफोर द पार्टीशन। तो इवन जो पार्टीशन की एक्चुअल जो खबर मिली थी, आई एम श्योर यू गाइस हैव सीन दैट पिक्चर, आई डोंट रिमेंबर द अनाउंसर्स नेम राइट नाउ, लेकिन जिसने 14 अगस्त को अनाउंस किया था, दैट वाज आल्सो ऑन रेडियो। ऑन रेडियो, यस। सारी ट्रांसमिशंस रेडियो पे ही होती थी, अबाउट द वेदर, स्पोर्ट्स, प्लेज, सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ रेडियो ही था। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस। But I think we're moving towards revival. I'm not sure. What do you guys think? Revival of radio, revival of newspaper, because हम सब social media use तो करते हैं, like it's a very big Yeah. part of our lives, but we also know, okay, you know, something's missing. Something is missing. But it's also for the wrong reasons. Like they should use it for the right reasons. वापस आ तो रहा है, लेकिन more for entertainment and more for things जो मसालेदार चीज़ें जिसको कहते हैं, Like gossips. gossips. लेकिन इनको information वगैरह के लिए भी यूज़ करना चाहिए। न्यूज़पेपर में भी आपको किसी को they're mostly like against things and they're like targeting things, Mhm. लेकिन instead of that आपको चीज़ों को promote करना चाहिए। Radio used to be called the theater of the mind. कि मतलब it's Yeah. so powerful, and it does wonders with your imagination. रेडियो, आई थिंक रेडियो ज़्यादा मुश्किल है टीवी से। अगर कोई रेडियो करते हैं तो वो ज़्यादा है, क्योंकि उनको आवाज़ से बोलने से सब कुछ डिलीवर करना है। हम तो अपने हैंड मूवमेंट से टीवी पे आप कर सकते हो सारा, Right. फेस एक्सप्रेशन, मगर रेडियो इज़ मोर डिफरेंट। It's all about the voice. Yes. So if I ask you guys, अभी ज़रा थोड़ी सी shift करते हैं conversation. You guys are obviously media students. आप लोगों ने media में भी जाना है. तो just tell me briefly, both of you, कि आप लोगों ने क्या exactly media में करना है, and what made you come to this field? What was it? I want to write, I want to become an editor probably, or I want to do production, post production stuff too as well. और मीडिया पे आने का यही वजह था कि आई लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ एट द सेम टाइम, कि डाइवर्स चीज़ें, कि मैं एक चीज़ नहीं कर सकती कि Right. तो मीडिया में था कि आई हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, मैं ये कर सकती हूँ, राइटिंग कर सकती हूँ, फोटोग्राफी, इतनी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ, इसलिए आई लाइक दैट। और फैमिली का तो प्रेशर नहीं था नहीं, towards नहीं। any specific career, नहीं। because we know पाकिस्तान में तो ये हो- एक typical stereotype है, डॉक्टर, इंजीनियर, No, लॉयर, yes. टीचर, इसके अलावा कोई करियर समझा ही नहीं जाता। मैं उन्होंने कहा जो करना है अच्छा करना है, बस बी द बेस्ट एट इट। माय फादर ऑलवेज सेज दैट। That's a very good हाँ। strategy. What about you? I came to Bharia because most of my family, my cousins वगैरह सब ने इधर से ही किया हुआ है, and I've heard a lot about it all my life. और मुझे I like exploring things and I like doing stuff and I want to work, like I like working. तो यहाँ पर I heard about BUTV और ये इतनी ज़्यादा opportunities जो बहरिया provide करा था, and I was like, why not? Let's explore. That's also good, you know, to explore your horizons, to see, you know, where do you belong, because I think यहाँ मीडिया में आने से पता चलता है. पता चलता है। So one stereotype that we have attached with females in Pakistan कि औरतें को मीडिया में नहीं जाना चाहिए. I think that's a very wrong idea. यस, रॉन्ग आइडिया, काफ़ी रॉन्ग आइडिया। जैसे कि मेरे साथ ये भी हुआ, स्कार्फ लेती हूँ मीडिया में जाऊँगी, ये बहुत ज़्यादा हुआ, मगर आई थिंक वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप औरत हो या कुछ भी हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह कैरी करो अपने आप को सारा। I think कि दिन ब दिन हाँ। these stereotypes काफ़ी हद तक ख़त्म भी होते जा रहे हैं. खत्म हो रहे हैं Because you know अब जो मीडिया सीन में काफ़ी females आ गई हैं. बहुत। Very famous people, शर्मीन उबैद चनोय है और भी बहुत से लोग हैं who are actually working towards making media a respectable profession Yes. for women. So what about your families? Have they always supported your idea to be in media? लाइक माय मॉम सेज के टीवी पे नहीं आना, सामने नहीं आना, पीछे बेशक काम करो, प्रोडक्शन का, राइटिंग का, कंटेंट। तो मैंने कहा चलें 4 साल बाद देखेंगे। 4 साल बाद इंशाल्लाह मैं उनका बदल दूंगी माइंडसेट। My family is okay with everything as long as it's good and आप कुछ अच्छा कर रहे हो. Yeah, you're doing something, you're giving back to Product- society. So if we talk about Pakistan, in all the years you've lived here, what has it given you so far? What are the things that you always want to keep with yourself, even if you start living outside of the country at some point, but some things that are a part of you? Pakistan culture, Pakistan culture is very strong, I guess. कि I can't live I can live, but I will always be missing कि पाकिस्तान का culture I will miss, कि जो इतनी ज़्यादा bonding, family bonding बहुत strong होती हैं,
ये तो इसलिए, और यहाँ के लोग काफ़ी वो हैं वेलकमिंग वगैरह और सारा, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई मिस अगर मैं बाहर होंगी। And you would take it with you. यस कि आई विल प्रमोट कि फैमिली जो लिंकेज है जो स्ट्रांग होता है सारा वो। What about you, Manu? I think Pakistan gives you freedom to some extent. जैसे आप हर जगह there are many places जहाँ पर nobody cares about you, but यहाँ पर आपको अगर आप किसी को कहो तो there हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपको help करेगा. And Pakistan gives us all the seasons, and it gives us such beautiful places. I love the northern Pakistan और all of that. मतलब आपको हर जगह ये चीज़ें नहीं मिलती, तो I Because think home is home after all. home is home. And like you talked about freedom, and it's a very relevant thing to say आज के मौके के हवाले से, because वहाँ तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगा था, and of course 70 years हो गए हमें almost, हो जाएंगे I think इस अगस्त में, and 70 years में हम एक जगह तक पहुँचे हैं, but आने वाले 70 years में where would you like to see Pakistan being the next generation? I think Pakistan is still growing. अभी रुका नहीं है, and we should be proud that we're still moving instead of stopping at one point. And even after being blamed for so many things like terrorism and everything, we're still going and we're still trying to remove that tag from us. And I think there's going to be a point when Pakistan will be completely free, and everybody would be proud to say that they're Pakistani instead of a few people. Sadaf, would you like to add to that? यस जैसे मानू ने कहा है कि डेवलप हो रहा है हमारी कंट्री, और आई सी के 70 ईयर्स में इंशाल्लाह हमारी कंट्री एक प्रॉपर डेवलप कंट्री होगी जहाँ सब लोगों को इक्वल राइट्स मिल रहे होंगे, इक्वल फैसिलिटीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह. So that's how I see it. Okay, we're just going to wind up. In the end, any message you would like to give to our audience as students, as the youth, as future media persons about Pakistan, about yourself, anything? Just be positive and don't let anything stop you. And if you're doing something for the good, and if you think that it's right, then do it. And don't let anybody tell you that you're not capable of doing something. And what about you, Sadaf? यही कि जो भी करो ये सोचे कि पाकिस्तान का इनमें हो फ़ायदा, और उनको क्योंकि पाकिस्तान ने हमें इतना कुछ दिया है तो वी हैव टू रिटर्न समथिंग बैक. तो जैसे कि हम इतने अच्छे एक चीज़ में हो जाएं, तो डोंट गो अब्रॉड, स्टे इन पाकिस्तान, मेक इट बेटर and do stuff here rather than going abroad और अपना वहाँ talent सारा show करो. Stay in Pakistan and do stuff here. I think that's a very good point. We will end on this note. I hope you enjoyed this discussion with these very insightful students. They have given us some very good things that we can learn from them. One of them being to stay positive. We need to understand कि छोटी-छोटी बातें और ऊंच नीच ज़िंदगी में चलती रहती है, but if we look at the bigger picture, this is nothing. और आने वाले वक्त में हमें यही चीज़ें काम आएंगी. Until next time, I am Doab Sar. Thank you so much for watching. Allah Hafiz. पाकिस्तान जीते 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 पाकिस्तान 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 जीते